लास्ट क्लास हम लोग देख रहे थे डिकोडर सर्किट। आई थिंक कि हम लोग कंप्लीट कर लिए थे। यस। टुडे विल डिस्कस इनकोडर। encoder. Now before discussion of this encoder, जो दो तीन important point है we'll discuss. Encoder is the reverse process. पहला चीज we reverse to the decoder, यानी डिकोडर के रिवर्स है, तो जो वर्किंग मैकेनिज्म इसका होगा वो भी डिकोडर के रिवर्स होगा। तो डिकोडर के रिवर्स में होने का मतलब क्या है कि n is responsible for generation of 2 to the power n. That means here in case of decoder, n represent input, and the same n when we raise to the power it becomes output. Now the concept will be interchanged here, and now from this output, any 2 to the power n number of input, your encoder generate n number of output. So here now in this input become output become input in case of encoder, and your input becomes output. तो बोल सकते हैं कि n से जो 2 to the power n आउटपुट जनरेट हुआ, ये आपका जनरेशन जो है बेसिकली डिकोडर सर्किट का से रिस्पॉन्सिबिलिटी आपका ये कंप्लीट हुआ। और इसी चीज से फिर आपको अगर n तक जाना है तो फ्रॉम दिस यू नीड अ पर्टिकुलर encoder circuit. So that is the concept. The n number of input will generate 2 to the power n number of output, and further if you want to regenerate the total number of input through which the 2 to the power n number of output is generated, then you can use encoder to retrieve the set of inputs. Set of inputs को retrieve करने के लिए आप फिर से encoder circuit को use कर सकते हैं. That's why it is a reverse to the decoder. डिकोडर का ये रिवर्स प्रोसेस है। तो इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, यू कैन से इफ यू मेंशन द डेफिनेशन, तो इट इज द कॉम्बिनेशनल सर्किट that performs that circuit that performs the inverse operation of a decoder सर्किट। डिकोडर सर्किट जो है उसका इनवर्स ऑपरेशन ये फुलफिल करता है। तो आप कह सकते हैं कि इसका जो आउटपुट इनपुट मैकेनिज्म है वो भी जस्ट अपोजिट टू द डिकोडर सर्किट होगा। हेंस द क्या लिखेंगे, the combinational circuit that performs the inverse operation of a decoder circuit. Hence you can say the opposite of decoding process is known as
encoding process. Encoding process. Yeah, you can also say hence the opposite of decoding is known as encoding. So in this manner we can define give the definition for encoding and decoding process. Now on the basis of this you can also generate the actual definition of the encoder. This is the definition on the basis of decoder circuit, but whenever you are giving the actual definition of the encoder, then you have to use this working mechanism. The working mechanism earlier in case of decoder circuit, we will mention here, we mentioned it that the total n number of input will responsible for generation of 2 to the power n number of output. Here we take the concept that whatever output generated by the decoder circuit, when we use that output as an input, then it is responsible for generation of n number of output. Okay ना? So in which manner you can write? Anyone? कैसे लिखेंगे इसको? n और 2 का पावर n का रेशियो दिखाने के लिए आप सिंपली दिखा सकते हैं, क्योंकि कॉम्बिनेशनल सर्किट है तो करंट इनपुट के बेसिस पर करंट आउटपुट जनरेट करेगा। अदर से कोई आपको इंफॉर्मेशन पास्ट आउटपुट वैल्यूज या किसी तरह का इंफॉर्मेशन यहाँ नहीं चाहिए। तो सिंपली यू कैन मेंशन कि एन एनकोडर इज ए कॉम्बिनेशनल सर्किट which is circuit that performs that converts an active input signal into active coded output signal. तो एक्टिव इनपुट सिग्नल में के फॉर्म में हम 2 to the power n नंबर ऑफ इनपुट देंगे और जो आपका कोडेड आउटपुट सिग्नल आपके फॉर्म में n रिस्पांस आपका जो है वो आउटकम जनरेट होगा। तो यू कैन मेंशन हियर एंड इनकोडर इज अ logic circuit that converts active input signal into coded output signal. Now input active input signal क्या है? तो active input signal suppose is input segment that is represented by suppose 2 to the power n here, ठीक है ना? और you can say कि अगर हम इसको 2 to the power n डायरेक्ट नहीं लिखें, if we mention here m and coded output signal, ठीक है ना, that is represented by n. So what is the relationship between this coded input signal and input active input signal और coded output signal के बीच में relationship क्या है? तो you can mention the relationship between m and n is as follows. So m is equal to 2 to the power n. Okay, that's why ये आपका इनपुट चैनल हो गया और n आपका जो है वो आउटपुट चैनल हो गया। That means as per the definition of encoder circuit we have, it is the opposite of operation of the decoding. Decoding के just opposite operation है। तो whatever output generated by the decoder circuit, once we take that output as an input for the encoder circuit, then we will get the output in the form of set of input earlier used in decoder circuit. तो रिवर्सिबल प्रोसेस को बनाने के लिए यहाँ पर हम
डिकोडर के जगह इनकोडर सर्किट बना ले सकते हैं, जिसके थ्रू हम सेम सेट ऑफ इनपुट वैल्यू को रिट्रीव कर सकते हैं। और कुछ इसके बारे में एक और चीज आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं कि रेशियो अगर देखा जाए तो नंबर ऑफ इनपुट से नंबर ऑफ आउटपुट किसका रेशियो ज्यादा है, कौन ज्यादा होगा? नंबर ऑफ इनपुट। So you can also make the conclusion कि number of input is greater than number of, in this particular case number of input का रेशियो जो है वो नंबर ऑफ आउटपुट से ज्यादा होगा, क्योंकि नंबर ऑफ आउटपुट को एज ए एक्सपोनेंट हम यूज करेंगे और वो डिसाइड करेगा कि m का वैल्यू कितना होगा। तो अगर हम स्टैंडर्ड अगर सर्किट को देखा जाए तो स्टैंडर्ड सर्किट इनकोडर के लिए अगेन यहाँ पर भी हम फिक्स अगर नहीं करें, ठीक है, तो इतना नंबर ऑफ इनपुट चैनल है और आउटपुट भी चैनल हमारे पास फिक्स नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड करेगा कि आपका इनपुट कितना है। तो m/n के लिए m/n इनकोडर यहाँ पर m हो गया आपका m इनपुट सिग्नल लाइन और n आउटपुट सिग्नल। m/n लाइन डिकोडर है इनकोडर। तो लास्ट क्लास जो हम लोग डिस्कस किए थे डिकोडर सर्किट, तो वहां पर बात किए थे ऑक्टल टू बाइनरी, ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्टर जो है ये आपका जो डिकोडर सर्किट है। अगर 3/8 लाइन डिकोडर की बात किया जाए तो 3/8 लाइन डिकोडर, या इसको हम लोग ऑक्टल टू बाइनरी कन्वर्टर भी यूज कर सकते हैं वर्ड। क्यों? कन्वर्टर में आपको थोड़ा कंफ्यूजन होगा कि यहाँ पर कन्वर्टर डिकोडर है या इनकोडर है, लेकिन अगर इसको यहाँ डिकोडर लिख दिया जाए तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा कि ऑक्टल टू बाइनरी जो है वो डिकोडर है। और बाइनरी टू ऑक्टल जब हम बात करेंगे, यानी इसी को जब हम इनपुट बनाएंगे, तो यहाँ पर भी आपका n = 3 के लिए m का वैल्यू आपका 2⁻³ 8 था। तो अब ये 2⁻³, अब अगर हम m/n की बात करें तो m जो है वो इस n से रिस्पॉन्ड कर रहा है, तो 2⁻n और n का वैल्यू अगर आपका है 3, तो आपका नंबर ऑफ इनपुट क्या हो जाएगा? यहाँ पर जब 3 पुट करेंगे 2⁻³ तो ये नंबर ऑफ इनपुट 8, और यहाँ से आपका जो है ये 8/3 लाइन इनकोडर। ठीक है, अब ये 8/3 लाइन इनकोडर को बोला जा सकता है बाइनरी टू ऑक्टल। ऑक्टल इसको क्या बोल दिए? बाइनरी टू ऑक्टल, नॉट ये 3/8 लाइन को क्या बताए थे? बाइनरी टू ऑक्टल ना। कोई क्रॉस भी नहीं कर रहे हैं, गलत यहाँ लिख रहे थे। वो कन्वर्ट कर रहे हैं सर बाइनरी टू ऑक्टल। 3/8 लाइन को 3/8 लाइन को क्या कहेंगे? बाइनरी टू ऑक्टल। बाइनरी टू ऑक्टल सर, हैं? बाइनरी टू ऑक्टल, बाइनरी टू ऑक्टल सर, ये ऑक्टल टू बाइनरी। बाइनरी टू ऑक्टल ना कहेंगे सर।
सर 3 इनपुट 8 आउटपुट आएगा तो एक मिनट देखने दीजिए क्या हम मेंशन किए थे। बाइनरी टू ऑक्टल लिख दिए हैं, तो क्या ये बाइनरी टू ऑक्टल होगा? ऑक्टल टू बाइनरी होगा। हैं? कंफर्म करिए, बाइनरी टू ऑक्टल सही है या गलत है? नहीं पता आप- सर। आप मेंशन जो किए हैं सर वही बता रहे हैं सर, बाइनरी टू ऑक्टल सर डिकोडर। ऑक्टल टू बता रहे हैं बाइनरी 3/8 लिखे हैं तो सर तो बाइनरी टू ऑक्टल नहीं होगा। बाइनरी टू ऑक्टल सही है ना? यहाँ पे सही है सर। यहाँ पे सही है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बाइनरी टू ऑक्टल जब वहाँ सही है तो यहाँ सही है। बाइनरी टू ऑक्टल ही सही है, ऑक्टल टू बाइनरी नहीं। यस सर। हम बताए हैं तो इसलिए नहीं, आप इसको बाइनरी टू ऑक्टल क्यों बोल रहे हैं ये समझ में आना जरूरी है ना। हम मान लेते हैं गलत बता देंगे तो गलत थोड़े ना सही हो जाएगा। सर बता नहीं- दीजिए सर क्यों बोलते हैं, नहीं समझ में आ रहा। हाँ Binary to हमको भी नहीं octal समझ ठीक में आया। है। और यहाँ सिंपली यहाँ 3 बिट का कॉम्बिनेशन किसका बनता है? 3 बिट का कॉम्बिनेशन हम बाइनरी का ही ना बनाते हैं। यस सर। 2 1, हाँ यस सर। तो जो पहले है वो पहले है, तो 3 बिट 3/8, तो 3 बिट इज यूज्ड फॉर बाइनरी और 8 इज यूज्ड फॉर इंडिविजुअल ऑक्टल नंबर सिस्टम 0 to 7। इज क्लियर? ओके सर। इसलिए यहाँ 3/8, क्योंकि यहाँ कंफ्यूजन आपको हो सकता है, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है। ठीक है, तो एग्जाम में जब ये क्वेश्चन रहेगा तो वहां पर आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि डिकोडर सर्किट यहाँ बताया जा है कि इनकोडर सर्किट। तो डिकोडर अगर मेंशन है तब तो ठीक है, 3/8 लाइन डिकोडर है तो क्लियर है, या बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर है तो ठीक है। लेकिन कन्वर्टर अगर हो गया, बाइनरी टू ऑक्टल कन्वर्टर का सर्किट बनाइए, कॉम्बिनेशनल सर्किट, तब उस केस में यू हैव टू टेक डिसीजन कि वेदर यू हैव टू डिजाइन इनकोडर सर्किट और डिकोडर सर्किट। ठीक है तो सर हाँ, अगर 4/16 होता तो क्या होता सर बाइनरी ऑक्टल के जगह पे? अगर 4/16 होता तो उसको 4/16 सर। उसको बाइनरी टू ऑक्टल नहीं कहते, उसको वही हम पूछ रहे सर बाइनरी इसको। टू हेक्साडेसिमल कहते हैं। ओके सर। 4 को भी सर बाइनरी कर देंगे। 4/16 की जब बात आएगी तो यहाँ बाइनरी नहीं ना है, इसको हम बाइनरी टू ऑक्टल इसको बोल नहीं सकते हैं यहाँ। बाइनरी टू हेक्सा। हाँ हाँ बता रहे हैं, बाइनरी टू ऑक्टल नहीं बोलेंगे, लेकिन इसको बाइनरी टू हेक्साडेसिमल बोल सकते हैं ना। यस सर। हैं? यस सर, उसमें 16 डिजिट हो सकता है। संख्या 3, हम यहाँ 3 नंबर ऑफ बिट के लिए नहीं कर रहे हैं। यहाँ 3 जो बिट आप ले रहे हैं या 4 बिट ले रहे हैं, वो कॉम्बिनेशन एक्चुअली आपका बाइनरी का 4 बिट यूज हो रहा है ना, यस या 3 बिट यूज हो रहा है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 4, 3। तो ये जो 4/16 ले रहे हैं, यहाँ 4 जो आपका यूज हो रहा है वो 4 बिट ऑफ बाइनरी के लिए यूज हो रहा है, 3 बाइनरी के लिए यूज हो रहा है। और ये जो 16 है ये हेक्साडेसिमल। 0 से लेकर 15 हेक्साडेसिमल डिजिट के लिए यूज हो रहा है। ओके सर। हो रहा है ना? यस सर। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल तो बोल ही सकते हैं। ओके। 2/4 रहेगा तो सर बाइनरी टू डेसिमल। 2/4 रहा तो क्या होगा बोलो? 2/4 रहा है तो क्या बोलोगे? बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल ऐसे बोलोगे? डेसिमल में केवल 4 ही कैरेक्टर होता है जी, होता ही नहीं है सर इसका। तो हैं? कुछ होता ही और नहीं। बाकी का जो डिजिट है वो कहाँ से निकलेगा? समझ गया सर, समझ गया सर, समझ गए। आप अगर उसको नाम दे रहे हैं ना तो उसमें वो सारा
डेटा डिजिट होना चाहिए, होना चाहिए। यस सर, ऑक्टल बोल रहे हैं तो इसमें आप D0 से D7 यानी कि ऑल द 8 डिजिट्स आर यूज्ड, मतलब रिट्रीव फ्रॉम दिस पर्टिकुलर कन्वर्टर या डिकोडर। हेक्साडेसिमल की बात कर रहे हैं 4/16, तो वहां भी D0 से D15 डिजिट्स, चाहे वो किसी कैरेक्टर के लिए यूज हो या डायरेक्टली डिजिट यूज हो, वो वहां पर यूज हो रहा है। ठीक है, Okay, sir. so this is the standard block diagram of encoder circuit. Now as per your input यानी कि m का जो भी वैल्यू है उसके हिसाब से n आपका चेंज होगा, यानी n के वैल्यू से m चेंज होता है। तो नंबर ऑफ आउटपुट जो आपका जनरेट हो रहा है, अगर वो 3 है 2 है, तो उसके बेसिस पर आपका जो है नंबर ऑफ कॉन्फ़िगरेशन ऑफ इनपुट आपका चेंज होगा। तो वी जस्ट टेक द एग्जांपल ऑफ सेम एग्जांपल ऑफ ऑक्टल टू बाइनरी। Just take the example of octal to binary encoder. Octal to binary encoder, और you can say octal है, मतलब octal में जो डिजिट बेस होता है 8, तो 8। हाँ 8/3 बाइनरी के लिए यहाँ पर ऑक्टल मैक्सिमम 3 बिट आप यूज कर सकते हैं बाइनरी का 8 डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। 8 डिजिट में मतलब कि ऑक्टल में 0 से लेकर 7 टोटल 8 डिजिट्स है, और ये 8 डिजिट्स को बनाने के लिए आपका बाइनरी का 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2, दैट मीन्स 1 2 4, ये आपका मैक्सिमम 3 बिट में आपका मैक्सिमम 7 तक का हाईएस्ट डिजिट तक बन सकता है ना। और वही चीज जब आप 0 to 15 की बात करेंगे, 16 डिजिट्स जो अभी हम लोग देखे, तो 16 डिजिट्स के लिए 2 का पावर 0, 2 पावर 1, 2 का पावर 2, 2 का पावर 3, यानी 1 2 4 8, ये 4 बिट आपका 4 0 बिट ऑफ बाइनरी लेना पड़ेगा। मैक्सिमम वैल्यू यानी 15 है, यानी 0 to 15 में हाईएस्ट डिजिट 15 है, तो हाईएस्ट डिजिट ये 4 बिट से बन सकता है। इसलिए हम 0 को यूज यानी कि 4 बिट बाइनरी को यूज करेंगे सारे डिजिट को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो 8/3 you can mention also 8/3 encoder. So either you say octal to binary encoder or you can say 8/3 encoder. ठीक है, तो octal हो गया 8 represent octal and 3 represent for representation for binary, यानी 3 bit binary combination we have and 8 total 8 set of inputs we have, octal to binary. तो यहाँ पर क्या है, as we know that here in case of 3/8 line decoder और 3/8 line decoder, 3 bits आपका जो है इनपुट कोड के रूप में यूज हो रहा है। दैट्स वाई यहाँ पर कोडेड आउटपुट सिग्नल का यूज किया गया है। कोडेड आउटपुट सिग्नल दैट मीन्स जो 3 बिट आपका इनपुट कोड है उसी को यूज किया जाएगा। तो उसी तरह से एन ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर परफॉर्म्स जस्ट अपोजिट टू द बाइनरी टू ऑक्टल डिकोडर। ठीक है, तो एज वी नो दैट in you mention here 3/8 decoder, 3/8 decoder रिवर्स। as we know that 3/8 decoder accepts a 3 bit input code, 3 bit input code and activates 1 of 8 D0 से D7 तक 1 of 8 output lines corresponding to that code. सिमिलरली इसी तरह से एन ऑक्टल, क्योंकि हम यहाँ पर 3/8 की जगह 8/3 यूज करेंगे, तो सिमिलरली एन ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर
encoder performs the opposite function of binary to octal decoder. Opposite function हो जाएगा octal decoder. That means It is a input. it accepts. That means it accepts 8 input. ठीक है ना, 8/3 होगा तो 8 input code and produces a 3-bit output code. 3-bit output code आपका रिप्रेजेंट करेगा corresponding output code corresponding to the activated, जो आपका इनपुट होगा corresponding to the activated input. ठीक है, in this manner we can mention the truth table. ठीक है ना, इसके बेसिस पर अगर हम ट्रूथ टेबल बनाएं तो ट्रूथ टेबल कैसे होगा? ट्रूथ टेबल कंसिस्ट ऑफ 8 इनपुट चैनल and 3 output channel. So we just make we have 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 6, यहाँ पर हो गया आपका 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. और चलिए यहीं पर लिख देते हैं. ये इनपुट सेक्शन हो गया आपका, ये आउटपुट सेक्शन. यहाँ पर भी 1, अब इनपुट में we just mention all the digits. तो D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7, and here we take output section. So output में you can mention Y2, Y1, Y0 या Y0, Y1, Y2 जो भी ऑर्डर लेंगे. And on the basis of this जो आउटपुट सेक्शन है आपका, आउटपुट सेक्शन उसी तरह से काम करेगा जैसे इनपुट आप लेते थे. तो हम लोग पहले आउटपुट सेक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं. आउटपुट सेक्शन में क्योंकि 3 कॉलम मेंटेन करना है एंड टोटल 3 इनपुट्स भी है, तो ऑन द बेसिस ऑफ दैट टोटल 8 सेट ऑफ आपका आउटपुट कॉम्बिनेशन होगा. तो 8 को हम लोग फिर एक एक कॉलम वाइज मेंटेन करेंगे. तो 8 का आधा 4 होता है, तो 4 टाइम 0 and 4 time 1. 4 टाइम 1 and half of 4, 2 times 0, 2 times 1, and half of 2, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1. And then we just on the particular digit, any or the specific combination of output, which digit is on. So you already know that whenever you are using 4 to 1 pattern, then for each digit you have 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. You have a specific
पैटर्न और मतलब जो बिट पैटर्न, तो उसमें हम लोग जैसे यूज करते हैं, तो जीरो के लिए we just disable all the bit like 2 का पावर 0, 2 का पावर 1, 2 का पावर 2. So when you initialize 0 to all, then sum up the digit of 0, you will get the 0 as a decimal. तो ये आपका ऑक्टल नंबर है 0 to 7. 1 के लिए हम 1 को ऑन करते हैं, बाकी को ऑफ. 2 के लिए उसी तरह से 2 को ऑन करते हैं. 3 के लिए 2 और 1 को ऑन करते हैं. 4 के लिए 4 को ऑन करते हैं. 5 के लिए 4 और 1 को ऑन करते हैं. 6 के लिए 4 2 को ऑन करते हैं और इसके लिए सब को ऑन करते हैं. तो उसी तरह से ये जो आपका जो डिजिट यहाँ 0 है, वो 0 ऑक्टल नंबर सिस्टम का 0 डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है. ये 1 को, ये 2 को, ये 3 को, ये 4 को, ये 5 को, ये 6 को और ये 7 को. तो on the basis of this you can mention here for D0, मतलब for 0 0 your D0 is on, the rest of the bit is off. The rest of the bit is assigned by 0. Similarly D1 is on, rest of the bit is off. डायगोनल में सर सब वन. Similarly D2 is on. इसी तरह से D3 is on, D4 is on, then D5 is on, then D6 is on, and finally one. This is the particular input output ratio. So on the basis of this, first of all we find out the expression for the output. तो आउटपुट के लिए एक्सप्रेशन क्या होगा, हमको सबसे पहले बताइए कि व्हाट इज द लॉजिक एक्सप्रेशन फॉर y2 is what is the logic expression for y1 and y0. तो एक बताइए. यस, राज वर्मा बताइए. What is the logical expression for y2? Anyone? संभव शर्मा बताइए. सर y2 का सर. यस, एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे इसका y2 y1 y0 के सर लिए? जो 0 है उसको कॉम्प्लीमेंट कर देंगे सर, और जो हाँ, 1 है y2 कॉलम को देखिए. y2 कॉलम में जहां जहां 1 है, वो 1 कौन सा डिजिट 1 है जिसके चलते ये 1 है, और सबको एक्युमुलेट करिए. तो ये जो 1 है ये D4 के लिए चलते हैं. उसके बाद ये जो आपका ऑन है D5, नेक्स्ट D6 और लास्ट वाला D7. इसका मतलब है y2 आपका इक्वेशन जो बन रहा है वो D4 प्लस D5 प्लस D6 प्लस D7, ये 4 डिजिट के चलते ये आपका y2 एक्सप्रेशन है. सिमिलरली फॉर y1 जस्ट सी, पहला 1 किसके लिए के चलते हैं? D2, D2 के दूसरा 1 D3, D3, D3 तीसरा 1 D6 D6 D6, और लास्ट वाला D7. D7, उसी तरह से y0 को देखिए, पहला 1 जो है वो D1 डिजिट 1 के चलते है. D1 दूसरा 1 जो है वो डिजिट D3 7 के D3 चलते के हैं. चलते. 7 है, 3. D3 है सर. और तीसरा 1 जो है वो डिजिट 5 के चलते हैं. D5 और लास्ट वाला 1 जो है डिजिट D7 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 के लिए. हाँ, दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द पर्टिकुलर आउटपुट. यानी जो हमारा आउटपुट 3 बन निकलेगा, y2 y1 और y0, 3 बिट्स, दैट इज टोटली ऑन द बेसिस ऑफ दिस डिजिट्स. तो y2 का डिजिट्स, y1 का और y0 का. ऑन द बेसिस ऑफ दिस द ऑक्टल, this is the truth table for octal to binary
इनकोडर। अब कभी कभी इसमें क्या कहा जाता है कि इनेबल, ठीक है ना, ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर विथ इनेबल इनपुट। तो एनीवन बताइएगा कोई, व्हाट डू यू मीन बाय इनेबल इनपुट? इनेबल ऑन होगा तो ये वो इसको कम कम Yes. करेगा। हाँ, करेक्ट करेक्ट। तो इसमें एक आप इनपुट सेक्शन में एक इनेबल भी आपका सेक्शन हो जाएगा। और ये जो 8 आप देख रहे हैं ये तब के लिए है जब इनेबल का वैल्यू 1 होगा। अगर इनेबल 0 है तो किसी तरह का कोई कॉम्बिनेशन हमारा आउटपुट जनरेट नहीं करेगा। तो इनेबल को यहाँ पर एडअप कर सकते हैं, ऑक्टल टू बाइनरी इनेबल इनपुट इनकोडर। तो ऑक्टल टू बाइनरी इनकोडर विथ इनेबल इनपुट में एक इनेबल सेक्शन जोड़ देंगे और इनेबल में एक रो आप ऐड कर सकते हैं कि जब इनेबल 0 है तो उस केस में D0 से D7 पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, क्रॉस कर देंगे। और Y2, Y1, Y0 में भी कोई इफेक्ट नहीं होगा, कोई आउटकम जनरेट नहीं होगा। आउटकम जनरेट तभी होगा जब इनेबल ऑन होगा। तो ये जो 8 कॉम्बिनेशन हम लोग देख रहे हैं ये इनेबल इनपुट एट लॉजिक 1 पर है ना। एट लॉजिक 0 आप एक दिखा सकते हैं जिसमें D0 से D7 को क्रॉस कर दीजिएगा, Y2, Y1, Y0 को भी क्रॉस कर दीजिएगा। दैट मीन्स कि इनेबल इनपुट अगर लॉजिक 0 पर होगा तो उस केस में आपका जो है वो सर्किट, इनकोडर सर्किट काम नहीं करेगा। तो इसलिए इनेबल अलग से हम नहीं बताए हैं। यू कैन मेंशन इफ इन क्वेश्चन इनेबल इनपुट इज रिक्वायर्ड, तो इनेबल रिक्वेस्ट इनपुट के लिए एक कॉलम आप यहाँ बढ़ा सकते हैं। इज इट क्लियर? सर इनेबल इनपुट क्लियर नहीं हुआ सर। इनेबल नहीं क्लियर हुआ? नहीं सर। सर ये जो Y2 को D4, D5, D6, D7 लिखे ना, तो इसका पूरा मतलब एक्सप्रेशन कैसे आएगा, मतलब Y2 का? ये तो समझ गए कि 1 है तो D4, D5, D7 आ जाएगा, बट अगर क्वेश्चन मतलब फ्लो चार्ट बनाना हो तो अच्छा ये यस सर। इसका अब D4 का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे मतलब? कहने का मतलब है कि आपका जो डिजिट है ना, ये Y2, Y1, Y0 ये एक्चुअली रिप्रेजेंट किसको कर रहा है? ऑन को। इनेबल ऑन है इसलिए। ठीक है, ओके। ये समझ में आ रहा है ना? यस सर यार। ये जो Y2, Y1, Y0 है ये आपका 3 बिट पोजीशन है, इसीलिए इसको Y2, Y1, Y0 लिख रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले 2 आता है, फिर 1 आता है, 0 आता है ना। यस सर। बहुत जगह आपको पहले Y0, Y1, Y2 लिखा जाए, लेकिन इसको उसी तरह से लिए हैं ट्रूथ टेबल में जिस तरह से ये एक्चुअल में आपका कंपोनेंट काम करता है। राइट टू लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट हमारा ये बढ़ता है आगे, लेकिन इसका जो रेशियो है वो लेफ्ट टू राइट आपका एसोसिएशन यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है। तो अगर हम Y2 की बात करें तो Y2 का D4, D5, D6 और D7 ये डिजिट आपका जो है 4, 5, 6, 7 4 डिजिट को यहाँ पर ऑन दिखाया जा रहा है। और बीच में आपका क्या है? लॉजिकल और ऑपरेटर है। तो ये लॉजिकल और ऑपरेटर तो आपको पहले से ही पता है कि Y2 को ऑन करेगा, ठीक है। तो Y2 को ऑन करेगा, उसका एग्जांपल हम लोग ऐसे देखेंगे कि अगर हमारा कोई भी पर्टिकुलर डिजिट डिजिट 0 आपका ऑन है तो उस केस में डिजिट 0 जैसे ही लिखते हैं, जैसे आप लिख रहे हैं उसी तरह से ये आउटकम जनरेट होगा। तो डिजिट आपका जो Y2 कौन कौन से समय में आपका ऑन चाहिए आपको? Y2 का मतलब समझ रहे हैं ना? 4। यस सर। यस सर। तो 4 आपका कब कब ऑन रहेगा? जब 4 बनाना हो, 5 बनाना हो, 6 बनाना हो और 7 बनाना हो। आर यू गेटिंग द पॉइंट? यस सर। Yes, sir. यहाँ D4, 5, 6, 7 लिखने का मतलब है ये जो Y2 है, ये Y2 एक्चुअली आपका ये जो Y ले रहे हैं, ये Y यहाँ पर 0, 1, 2 है। क्लियर? यस सर।
तो ये y2 लिखने का मतलब है ये y2 एक्चुअली 2 to the power 2 4 को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस y1 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 को 2 को रिप्रेजेंट कर रहा है। और y0 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1 को 1 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका कहने का मतलब है लॉजिक सर्किट में कि आपको 4 to 1 पैटर्न में 4 की आवश्यकता कब पड़ती है? 0 1 2 3 बनाने में तो नहीं पड़ती है, नो सर नहीं ना पड़ता है। नो सर D4 D5 और D7 ये 4 को आप यूज कब कर रहे हैं? देखिए 0 1 2 3 तक 4 यूज हुआ है, नो सर नहीं ना हुआ यूज। नो सर No, sir. इसीलिए यहाँ पर 4 5 6 7 4 5 6 7 का मतलब है 2। अब देखिए आपको 4 बनाने के लिए इसको ऑन करना पड़ेगा, 5 बनाने के लिए भी इसको ऑन करना पड़ेगा, 6 बनाने के लिए भी इसको ऑन करना पड़ेगा, यस सर और 7 बनाने के लिए भी इसको ऑन करना करना पड़ेगा। क्लियर? यस सर उसी तरह से y1 लिखने का मतलब है कि y1 का मतलब हुआ 2 का पावर 1 1 दैट इज 2। तो 4 2 1 में 2 आपका कब कब ऑन रहेगा? तो 2 3 6 और 7 बनाने साथ में। में तो लिख लीजिए 2 3 6 और 7। अब इसको बनाइए, देखिए कि 2 ऑन बिना किए काम हो जाता है। नो सर ऑन करना पड़ेगा पहले ही 2 को ऑन कर दीजिए इस तीनों के चारों के लिए। अब उसके बाद सेट कीजिए 2 के लिए 2 है तो 0 0, 0 0 3 है तो 2 0 है 1 तो 1 इसमें 1 कर देंगे, 3 हो जाएगा। 6 है तो 4 को ऑन कर देंगे, 4 2 इसको 0, 7 है तो इस दोनों को ऑन करेंगे। समझ में आ रहा है? यस सर और y0 का मतलब हुआ 2 का पावर 0। इसका मतलब 4 2 1 में ये वाला चीज आपका यहाँ पर मेंशन है ना कि Yes, 1 3 5 7 5 बनाने के 7 लिए। तो 1 3 5 7 पहले लिख लीजिए 1 3 5 7। और अब इसके बाद ये 2 का पावर 0 यानी y0 के लिए आपको ये इसको ऑन करना है। तो 1 को ऑन कर दीजिए पहले, 1 1 1 एंड 1। नाउ देखिए ये तो ऑन होना ही है, ये फिक्स है। अब इसको 1 बनाने के लिए 1 को ऑन करने से हो जा रहा है तो इसको 0 कर देंगे। 3 के लिए हमको 2 को भी ऑन करना पड़ेगा 1 के साथ साथ, 5 के लिए 4 को ऑन करना पड़ेगा इसके साथ, और 7 के लिए 4 और 2 सबको ऑन करना पड़ेगा। नाउ इट इज क्लियर? यस सर क्लियर उसी के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर यहाँ पर ये चीज मेंशन किया गया है y2 y1 और y0। Y0 Now once you have the logical expression for this, you can design the logic circuit. The logic circuit will be designed in this manner. So there is 1 2 3 4 5 6 7 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पर ये हो गया D0 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7। नाउ चूंकि लॉजिकल और ऑपरेशन यूज हो रहा है तो लॉजिकल और ऑपरेशन में जस्ट यूज 3 1 2 3 और 3 और is responsible for generation of 3 output, that is y2 y1 and y0। now we connect y2 के लिए मतलब कि 2 to the power 2 4 के लिए, तो 4 के लिए आपका कौन कौन ऑन होगा? 4 ऑन होगा, 5 ऑन होगा, 6 ऑन और 4 ऑन होगा, देन 5 ऑन होगा, देन 6 ऑन होगा और देन 7 ऑन होगा। क्लियर? y1 का मतलब हुआ 2 का पावर 1, 2 का पावर 1 के लिए का मतलब 2। तो 2 ऑन कब कब होगा? तो 2 ऑन आपका हो रहा है
दो के लिए नहीं होगा। 2 3 5 7 ना, 2 3 6 7। तो 2 के लिए 2 2 2 3 6 and 7। You have 1 3 5 7। 1 1 3 5 5 and 8। तो ये आपका बन गया लॉजिक सर्किट। एट बाई थ्री लाइन इंकोडर का पर्टिकुलर। तो इसके बेसिस पर 16/8 ये सब बन जाएगा। यस सर। यस सर Yes, बन sir. जाएगा। Yes, sir. नेक्स्ट क्लास जो है, now of whatever we discuss, that is totally concentrated on DSCIT. Next class we will discuss sequential circuit. That is the second segment of arithmetic circuit. So under sequential circuit, we will discuss about the flip-flops, types of flip-flops. We'll just go through that one. Types of flip-flops like RS, CISR, JK, T, D, master slab, and the one or two mode of the counter also. So we can discuss that counter part also. So this one is the last content we have to discuss under this paper, discrete mathematics, but it is not included in Boolean algebra. So you may join the next session